session is that we will be taking the coding part, right? We'll tell you how we can, or we will do the coding right here in front of you, right from the data gathering part till the API development. Okay. So for this session, we will be having Aditya sir. Okay, so Aditya sir will take the coding part. So he will give you brief idea, and we will do a project here right in front of you. So the basically the project name is Housing Finance Companies. Basically, it is a loan approval project. Okay, a simple project which where we will tell you how you can do your data gathering part, how you can gather your data from SQL using using the Python connectors. Okay, so and in that flow only we will conduct each and every step in machine learning. We will be uh, training some models using some machine learning algorithms, and after the training process we will go on to API development. Okay, so in API development also we will be showing you how you can get your results using Postman application. Okay, so this will be the brief about what we are going to do in today's session. Okay, so I have already uh, given you the brief idea how the overall life cycle of a machine learning project works, right? Um, as we actually, okay. So the first thing that we do is we work on our problem statement, right? So after justifying why we are doing this project, this basically includes your problem statement. Okay. So after problem statement, we go on to data gathering part. In data gathering, we do these things like gathering data, then specifying the or going through or getting overview of the data, like how many number of features will be there, how many number of rows will be there. Okay, different data types that we are going to deal with, and then whether your data is imbalanced or not. So these are the basic things that we deal in data gathering part, right? So this is just an overview. Okay, and after this overview we will start with actual coding practice. Okay, so in EDA part, then we deal with missing values detection, then outliers detection. Okay, so this is basically the about EDA, that we gather information about most of our data so that we can perform different actions on it. So after EDA part, it comes to the feature engineering part. So in feature engineering, basically based on the data that we have gathered from EDA, we take some actions, right? So first of all, we will treat the missing values. Okay, treating the missing values, it means we'll delete the columns those are having more than threshold missing values. After that, we will replace missing values where or in columns where the missing values are less than 30%. Then it comes to the outlier treatment. In outlier treatments, basically we access those outliers and then we replace those outliers using different methods. Okay. And the last thing that we do in a feature engineering part is encoding. As I told you, that there is one hot encoding as well as label encoding, and it is always better to use one hot encoding. And after it comes to the feature selection part, where we basically gauge the importance of different features that we have based on the methods, uh, which are different for categorical variables as well as your continuous variables. And after this, what we have, suppose we had around 40 to 45 features with us, and after going through feature engineering as well as feature selection, we had around 25 or 20 features in order to fed them to the machine learning algorithms. Okay, so yes, so this is the feature selection part in brief. After that, we go on to model training. In model training, we go through a number of different algorithms, and finally we reach to the algorithm which gives us better values, or the values which are acceptable to us. Okay, so here we also calculate a different metrics, performance metrics, and based on which we gauge the performance of our individual machine learning algorithms. And comparing these only, basically we take the call finally to go with which of our algorithm. Okay,
So yes, finally we will be dealing with accuracy part like accuracy, precision, recall, or F1 scores specifically. So so after that, what we will do, we will make our project, um, what we can say, we will make our project convenient with respect to the Flask API. Okay, so we will be writing some APIs in order to get inputs from the user. Okay, so these inputs you can will show you how you can go with that. Okay, so this will be the overall what I can say, or brief steps that we are going to follow for these sessions. So this session will be of 2 days. Okay, it will be divided into two parts. So or I can say it is divided into three parts. So yesterday we had our first part. So today we will have, or we will start with the coding part. So coding part is also divided into two parts. So today we'll take the first part, and later on the things that we are remained with will be conducted on tomorrow. Okay. So telling this, so I would like to introduce to you Aditya sir. Okay. So Aditya sir, are you there? Yes, Rohit sir. Okay. Okay. So yes. So Aditya sir will start with the coding part, right? So Aditya sir, please give a brief introduction about yourself, and then you can start. Yeah, I Yes. Yes. think we have been introduced to, I have been introduced to this batch before some time. I think before the machine learning part. And yeah, am I right? यस, मुझे याद नहीं सर। ओके। आई थिंक अभी आपने आपकी जर्नी तो कंप्लीट कर लिया। आई थिंक सिलेबस तो खत्म हो चुका है, और आपको टेंटेटिव डेट क्या दी गई है अपलोड करने की रिज्यूमे? वैसा बताया नहीं अभी तक। सिलेबस तो खत्म हो चुका है ना? नहीं यस नहीं सर, थोड़ा सा बाकी है। थोड़ा बाकी। अच्छा, ठीक है। सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ, बीच बीच में हम लोग मतलब प्रोजेक्ट पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इंटरव्यू में वो भी देखेंगे, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया अभी से हो कि क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं। लाइक हर एक एल्गोरिदम पे किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, कितने डेप्थ तक पूछे जाएंगे, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। आपके माइंड में भी कुछ क्वेरीज रहती है उसके लिए, तो हम लोग वो अभी आज भी सॉल्व कर दे। मतलब जैसे हम लोग कोडिंग करते जाएंगे वो सीखते सीखते जाएंगे। बेसिकली अभी मशीन लर्निंग के लाइफ साइकिल तो आपको सर ने बता दिया है, लेकिन डेटा साइंस का प्रोजेक्ट और मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट, एक तो डेटा साइंस का प्रोजेक्ट मतलब एक ब्रॉड आइडिया है। डेटा साइंस के अंडर आता है मशीन लर्निंग, राइट? सो मशीन लर्निंग की जो लाइफ साइकिल है वो तो हमें पता है पूरी तरह से, लेकिन एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? डेटा साइंस का प्रोजेक्ट कैन बी एनीथिंग, लाइक एनालाइजिंग द डेटा, कलेक्टिंग द डेटा, और कुछ इनसाइट्स लेना उससे। कभी कभी खाली डेटा विजुअलाइजेशन भी कर दोगे तो वो भी एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट ही होता है। इसलिए आप सिर्फ यही मत समझिएगा कि खाली मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। डेटा साइंस में मतलब बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आप भी जब प्रोजेक्ट आपका चूज करने वाले हो तब एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट सिंपल भी ले सकते हो, या फिर एक मशीन लर्निंग का कॉम्प्लिकेटेड भी ले सकते हो। और कुछ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे, जब मुझे लगेगा कि अभी थोड़ा कोडिंग बाजू में रख के आपको थोड़ा थ्योरेटिकल देना है, तब मैं वो बात आपको बता दूंगा कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विथ एक सिंपल सा, मतलब जो अभी तक हुआ है वो वही एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि okay, tell me when my screen is visible to you. विजिबल है? Yes, sir. यस। अभी ये तो आपको पूरा आइडिया है इसका कि हम लोग कैसे कैसे मूव होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट, सॉरी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो है, इसमें जो है
हमारा बहुत सा टाइम जाता है। मतलब प्रॉब्लम अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा बिजनेस का, तभी आपको उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इसको अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिसको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होता है ना, उसका प्रोजेक्ट का नॉलेज कभी भी अच्छा होता है। इसलिए आप जो भी प्रोजेक्ट सिलेक्शन करने वाले हो, तो आपको उसका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है कि आपके प्रॉब्लम में सोल्यूशन आपने क्या ढूंढा है, कि किस टाइप का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप जा रहे थे, प्रॉब्लम का डेप्थ कितना था, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व किससे हो सकता था, क्या प्रॉब्लम खाली एमएस एक्सेल में सॉल्व हो सकता था क्या, या फिर उसको मशीन लर्निंग ही चाहिए था क्या, या फिर उस वो खाली सिक्वल के कुछ कोड से सॉल्व हो सकता था क्या। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द सिंपलेस्ट वे। दैट इज व्हाट एज अ डेटा साइंटिस्ट वी डू। मशीन लर्निंग लगेगी या फिर हमेशा ही यही चाहिए, मॉडल बिल्डिंग करनी ही होगी, ऐसा कुछ नहीं रहता। इंडस्ट्री में कैसे रहता है कि प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए आप भी जब इंडस्ट्री में जाने वाले हो, सॉरी, तब किस टाइप का प्रॉब्लम आपको मिलेगा, उस पर आपको स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व हो सकता है, एज वेल एज व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन योर इंडस्ट्री। लाइक इफ इन योर इंडस्ट्री लेट्स से क्या बोल सकते हैं कि एनाकोंडा अवेलेबल नहीं है, या फिर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि ये तो हम लोग नहीं दे सकते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि हमारा डेटा प्राइवेसी का कुछ इशू है, इसलिए हम लोग एनाकोंडा नहीं दे, आप एनाकोंडा मत यूज करिए, आप कुछ अलग सा कीजिए। ऐसा तो कुछ भी हो सकता है, क्लाइंट का डिमांड कुछ भी हो सकता है, रेस्ट्रिक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। तो वो ध्यान में रख के हमको पहले प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो अभी नहीं करेंगे, वो तो जब थोड़ा कोडिंग का ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपको भी ज्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ मैं, इसलिए तब हम लोग बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के बारे में, अंडरस्टैंडिंग जब मैं आपको बताऊंगा, at that time please note down the words, like technical words that I'm going to tell you, because those technical words अगर आप आपके इंटरव्यू में यूज करने वाले हो, तो आपका एक एडवांटेज रहेगा कि आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मालूम है। और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जिसको अच्छे से पता होती है, उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि इसको इसके प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है, और इसको मैं किसी भी प्रॉब्लम में डालूंगा, मतलब जो भी प्रॉब्लम दूंगा, लेट्स से कि वो फाइनेंशियल डोमेन का रहेगा, या फिर हेल्थ डोमेन का रहेगा, या फिर किसी भी डोमेन का रहेगा, तो वो प्रॉब्लम ये सॉल्व कर लेगा। अगर उसको ये पता चल गया कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की पोटेंशियल है, तो आपका सिलेक्शन अच्छे से होता है। इसलिए कुछ टेक्निकल वर्ड्स अब भी आपको बता दूंगा, उसका डेफिनेशन क्या है वगैरह, या फिर उसको मतलब उसका कंसेप्ट क्या है, ऐसा भी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये डेटा गैदरिंग का जो पार्ट है, तो डेटा गैदरिंग में कुछ भी हो सकता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, या फिर सोर्स क्या है डेटा का, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द जुपिटर नोटबुक। मार्च की बैच है ना आपके? Yes, sir. यस।
ठीक है इतना, या फिर और जमीन करना है? नहीं सर, इट्स फाइन। ओके। सो अभी हम लोग डेटा गैदरिंग के बारे में बोल रहे थे, राइट? तो डेटा में क्या क्या रह सकते हैं, या फिर आपके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? कि अपना एक तो CSV फाइल हो सकता है, राइट? या फिर लेट्स से आपका कोई एक्सेल फाइल हो सकता है, देन जो कि ये जो थर्ड सोर्स है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम द सोर्स इज दिस दैट द क्लाइंट सर्वर इज देयर, राइट? क्लाइंट सर्वर की जो बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट सर्वर का क्या होता है कि कभी कभी क्लाइंट है, तो क्लाइंट डायरेक्टली हमें डेटा प्रोवाइड करने के लिए कभी कभी हिचकिचाता है, क्योंकि उनको मतलब कभी कभी ट्रस्ट का इशू भी हो सकता है, या फिर अगर हम लोग नए उनके लिए लेट्स से कि वो क्लाइंट हमारे लिए पुराना है, तो कोई थर्ड पार्टी भी वो लोग यूज कर सकते हैं, कि वो लोग किसी थर्ड पार्टी को देंगे और थर्ड पार्टी हमें कुछ प्रोवाइड कर सकती है, तो उसका क्लाइंट का हमें मतलब उसका उस सर्वर का हमें कुछ डिटेल्स दी जाएंगी और उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। या फिर लेट्स से कुछ डेटाबेस है, कंपनी का जो डेटाबेस हो सकता है, कि आपको डायरेक्टली आपके क्लाइंट ने उसके डेटाबेस के कनेक्शंस, या फिर मतलब कनेक्शन देने वाले मतलब क्या रहते हैं कि एक हर एक कंपनी रहती है ना, लेट्स से कि हम लोग किसी बैंक के बारे में बात कर रहे हैं कि XYZ बैंक है, तो बैंक का खुद का एक डेटाबेस रहता है, जैसे कि आपको भी पता है, आप लोग कुछ इंफॉर्मेशन बैंक को देते हैं, तो बैंक वाले कहीं पे तो स्टोर करते होंगे, तो वो लोग जो स्टोर करते हैं वो डेटाबेस में करते हैं, तो उनके पास बहुत सारे डेटाबेसेस रहते हैं। डेटाबेस का कैटेगराइजेशन कैसे करा है वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, कितने डेटाबेस होते हैं वो भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, अगर बैंक इंटरनेशनल है तो डेटाबेसेस कंट्री वाइज डिफरेंट रहेंगे, और ये भी हो सकता है कि इंडिया में जैसे महाराष्ट्र का डेटाबेस अलग हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे भी कैटेगराइजेशन क्लाइंट को करना है वैसा क्लाइंट करने वाला है। और यही तो मतलब बात होती है कि जब हमें कुछ क्लाइंट मिलता है, उसके डेटाबेस का इंफॉर्मेशन हमको लेना पड़ता है, उनसे ही लेना पड़ता है, क्लाइंट को पता रहता है, क्लाइंट की तरफ से भी कुछ डेटा के स्पेशलिस्ट लोग होंगे, राइट? तो वो हमें बताएंगे कि इस डेटाबेस में ये डेटा है, उस डेटाबेस में ये 2-3 टेबल है, उस टेबल में से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेट्स से कि डेटाबेस 1 है, डेटाबेस 1 में टेबल 1 है, इस टेबल 1 में कौन सा डेटा है कि टेबल 1 में डेटा है कि लेट्स से कि इंडिया का डेटा है उसमें, और इंडिया का भी कौन सा डेटा है कि कस्टमर का आधार कार्ड नंबर और कस्टमर का एप्लीकेशन नंबर है, खाली वही है। ओके, वो हमको T1 से लेना पड़ेगा, और उसमें एप्लीकेशन नंबर जो है वो रहेगा उनका प्राइमरी आईडी, क्योंकि वो हर एक को एक ही होता है, राइट? और उसके बाद क्या हो सकता है कि टेबल एक T2 टेबल भी हो सकता है डेटाबेस 1 में, और T2 टेबल में क्या हो सकता है कि उनकी इंफॉर्मेशन की उन्होंने that this application number has applied for this amount of loan, he belongs to this state, his what we can say PAN number is this, ऐसे कुछ फील्ड्स हो सकती है, राइट? ऐसा डेटाबेस में रहता है। इसलिए हम लोग क्लाइंट को जब भी मतलब हमारा इंटरेक्शन चलता है क्लाइंट को, तो ईडीए में हमारा ज्यादा टाइम क्यों जाता है? तो ईडीए में ज्यादा टाइम इसलिए जाता है क्योंकि हमें क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कुछ पता नहीं रहती, क्लाइंट का पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि कौन से डेटाबेस में कौन सी इंफॉर्मेशन है, वहां से क्या उठा सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर कभी कभी ये भी कंडीशन आ सकती है कि कभी कभी ये भी मतलब रिक्वायरमेंट हो सकती है हमारी तरफ से कि अगर आपके पास ये वाला फीचर है या फिर ये वाला वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब कुछ कॉलम की ये वाली इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा ही रहेगा, राइट? तो ये वाला हम अगर डेटा आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग मॉडल की एक्यूरेसी भी अच्छे से बिल्ड कर देंगे और आपका प्रॉब्लम भी अच्छी तरह से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज प्रोवाइड अस विद दिस डेटा, उनको कुछ रीजन देने पड़ेंगे,
उनको बताना पड़ेगा अच्छी तरह से कि ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है। वो कुछ ट्रस्ट बिल्डिंग का भी रहता है कि उसको भी ट्रस्ट आना चाहिए, हाँ इनको रियली में डेटा की जरूरत है कि इस यूं ही नहीं मांग रहे, ऐसा खतरा रहता है। वो कभी भी डेटा इजीली प्रोवाइड नहीं करेगा आपको, क्योंकि डेटा ही सब कुछ है अभी अभी मॉडर्न टाइम में, राइट। तो ऐसा एक डेटाबेस वन हो गया। सो ऐसे एन नंबर ऑफ डेटाबेसेस हो सकते हैं, राइट। और कभी कभी क्लाइंट का क्या रहता है कि वो डेटाबेस खुद से मैनेज नहीं करते। ये ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने डेटा मैनेजमेंट करने का सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी और एक कंपनी के साथ। ऐसा कंपनी किसी भी तरह से ऑपरेट हो सकती है, जैसा भी उनको फिजिबल लगे, उनका अमाउंट क्या है, या फिर वो एमएनसी है या फिर कैसी है, या फिर अलग अगर अगर वो कंपनी लेट्स से कि छोटी सी कंपनी है तो वो खुद से ही मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, डेटा कैसे भी कहाँ पे भी स्टोर हो सकता है। तो ये हो गई क्लाइंट सर्वर और डेटाबेस की बात। तो कभी कभी क्या होता है कि और एक फॉर्मेट में डेटा रहता है जो हमको खुद से लेना पड़ता है, जैसे कि वेब स्क्रैपिंग हो गया। वेब स्क्रैपिंग में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हमने अंडरस्टैंड किया, उसको सॉल्यूशन ढूंढना है हमें। तो वो ढूंढते वक्त अगर हमको लगता है कि इसका इसके लिए जो डेटा लगने वाला है यह इस वेबसाइट पे प्रेजेंट होने होगा, तो हम हमारे क्लाइंट को बोल सकते हैं कि इस वेबसाइट पे आपको जो लगने वाला है वो डेटा है, तो आप उस वेबसाइट से या फिर उस वेबसाइट के जो ओनर है उनसे कुछ बात कीजिए, कुछ एग्रीमेंट कीजिए, हमको परमिशन दीजिए, क्योंकि वेब स्क्रैपिंग तो परमिशन के बिना हो नहीं सकता, ठीक है। तो परमिशन दीजिए कि उस वेबसाइट से हम लोग डेटा को स्क्रैप कर लें। तो ये तो हो गई वेब स्क्रैपिंग की बात, ओके। और मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथन डेवलपर्स आर देयर वो आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इसलिए अगर आपको कुछ ज्यादा पूछा जाता है वेब स्क्रैपिंग के बारे में, तो आप बोल सकते हैं कि इफ दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेब स्क्रैपिंग, देन आई विल बी एबल टू लर्न दिस थिंग्स एंड आई कैन डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और जो हो गई बात जैसे कि पोस्ट एसक्यूएल भी में हो सकता है। आई एम ऑडिबल टू यू गाइज? Yes, sir. ये आपको पहले हो चुका है क्या? No, sir. कि अगर कुछ भी ऐसी बात हो जो कि रिपीट हो रही है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमें भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं अगर आपको अच्छे से कुछ पता होगा तो, राइट। मोंगोडीबी में कभी कभी हो सकता है, तो ये तो आपको अच्छे से आइडिया है सिक्वल एसक्यूएलराइट क्या है, राइट। और हमें इंटरव्यू में हमेशा ये बोलना है कि व्हाट, अभी कैसे बोल सकते हैं कि व्हाट वाज द चैलेंज दैट यू फेस्ड इन इंटरव्यू। तो इसके लिए ये जो सवाल है ना, इसके लिए आंसर कुछ किसी भी तरह से हो सकता है। तो इसके लिए जो आपको जवाब ढूंढना है ये आपको खुद से ढूंढना है, किसी को पूछते मत बैठो कि क्या चैलेंजेस होंगे। आप जब खुद से कुछ करोगे, कुछ कभी कभी मतलब आप लोग जब कोडिंग करते हो आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, लेट्स से कि आपने केगल से कुछ डेटा सेट उठाया है और उसको सॉल्व करते रहे, तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस होगी ना कि इसका मीन कैसे कैलकुलेट करूं, या फिर इसको किससे इंप्यूट करूं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। ऐसी कुछ फील्ड हो सकती है कि इसको किससे इंप्यूट करूं ये समझ में ही नहीं आता कभी कभी। तो ऐसी कुछ चैलेंजेस हो सकती है, और उसमें एक चैलेंज हो सकती है कि डेटा के बारे में कि डेटा वाज नॉट इन गुड फॉर्मेट। ये तो हम लोग हमेशा बोल सकते हैं, राइट। और आज हम लोग जो करने वाले हैं कि डेटा हम लोग कहाँ से उठाने वाले हैं, कि डेटा हम लोग उठाएंगे एक एसक्यूएल कनेक्टर। आई थिंक आपको उसके बारे में पता होगा, एसक्यूएल कनेक्टर का कुछ पता है आपको? No, sir. ओके, ठीक है। एक बार मुझे क्या ओपन करना पड़ेगा, माई एसक्यूएल आपको डेटा शो करता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे।
ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास डेटाबेस कितने हैं अभी। आदित्य नाम का डेटाबेस है, DB2 है, लोन डेटा है, माय आदित्य है, माय डेटाबेस है, ये सब हमारे पास अभी डेटाबेस प्रेजेंट है, राइट। तो आपको भी जब क्लाइंट का कुछ मिलेगा तो उसके पास भी ऐसे n नंबर ऑफ डेटाबेस रहेंगे, लेकिन आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए जितना रिक्वायरमेंट रहता है उसी का एक्सेस रहता है, हर एक का एक्सेस नहीं होता है, क्योंकि हर एक का एक्सेस तो वो दे नहीं सकते आपको, क्योंकि डेटा उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जो भी डेटा, या फिर कभी कभी ऐसा रहेगा कि डेटाबेस के भी कुछ टेबल का एक्सेस आपको रहेगा, तो टेबल का ओनर कौन, टेबल का भी कोई ओनर रहता है, जैसे कि वो टेबल किसने क्रिएट किया है या फिर उस पर कौन ऑपरेट कर रहा है, उसके आपको परमिशन चाहिए वो एक्सेस करने के लिए। तो ये सब कुछ बात की बात है, मतलब जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको ऐसे पता चलेगा कि क्या रहता है क्या नहीं। जैसे कि आपको ये भी पता रहेगा कि हमें क्लाइंट सर्वर का एक्सेस भी लेना पड़ता है, राइट। उसका आइडिया तो आपको हो गए। जैसे कि हमारा भी कुछ आईडी वगैरह निकालने में कुछ टाइम चला जाता है कि क्लाइंट का आईडी, क्लाइंट हमें आईडी प्रोवाइड करता है उनके डेटाबेस ऑपरेट करने के लिए, या फिर उस लेट्स से उनका सर्वर ऑपरेट करने के लिए। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं कि एक तो ये देखने वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, लोन डेटा, ये वाला डेटाबेस में हम लोग आज पूरा हमारा ये डेटाबेस है। ओके, सो इसमें भी 4 टेबल्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये लेंडिंग बैंक डेटा है, लोन बैंक डेटा 1, न्यू लोन डेटा, सिंपल लोन डेटा। ओके, सो let me show you this lending bank data। ठीक है, so select asterisk from loan data dot lending bank data। this loan data is the name of the database, right। loan data dot lending bank data, जिसमें मतलब अभी ये यहाँ पे रेडी था, इसलिए या फिर आप चाहते कि पूरा टाइप करके ही आपको दिखाना है अभी। Are you okay with these queries? These are very simple queries. Yes, sir. Yes. Yes, right. I don't think that wasting time in those things is good thing, right? तो जैसा कि अभी ये क्वेरी हम लोग रन करके देखते हैं कि हमारे लेंडिंग बैंक डेटा टेबल में कौन सा डेटा है। Okay, so application ID is there, then there are 3 types of different IDs are there, then application for applying the loan has been made। टाइम स्टैम्प एक रहता है, टाइम स्टैम्प क्या रहता है कि टाइम स्टैम्प एक ऑटोमेटेड प्रोसेस रहता है, जैसे भी आपके क्या कह सकते हैं कि जब भी आपको कुछ एप्लीकेशन किया जाएगा कस्टमर की तरफ से, तो कस्टमर का डेटा डेटाबेस में आता है, तो डेटाबेस में वो डेटा कब आता है उसका एक रिकॉर्ड रहना चाहिए कि ये कब आया था, इसलिए रहता है टाइम स्टैम्प। ओके, कि 22/11/01 को ये वाली रो जो है वो ऐड हो गई थी। देन एप्लीकेशन स्टेटस इज देयर, उसमें एक्सेप्टेड डिक्लाइन ऐसी कुछ कैटेगरीज रहेगी। देन QI इज देयर, सो ये नंबर ऑफ कॉलम हमको इसकी जरूरत भी नहीं है अभी। इनमें से भी हमको कुछ इंपॉर्टेंट वाले उठाने हैं, राइट। जैसे कि अप्लाइड अमाउंट इंपॉर्टेंट ही होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नल वैल्यूज है, इसलिए हम लोग एक बात हमेशा बोलते हैं कि डेटा वाज टू मेसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस एसेट के लिए लोन मंगाया गया था, मतलब अप्लाई किया गया था, वो जो एसेट है वो किससे बनाई गई थी। तो ये मतलब ये डेटा भी बैंक क्यों कलेक्ट कर रही है, क्योंकि बैंक को पता होना चाहिए कि किसके लिए लोन लिया जा रहा है। सैमसंग के रेफ्रिजरेटर लगता है, आई थिंक दिस इज यस रेफ्रिजरेटर फॉर होम के लिए सैमसंग कंपनी के लिए ये वाला एप्लीकेशन हुआ था। देन दिस इज द फॉर होम थिएटर, तो ये अब उसकी जरूरत हमें है या नहीं इन आवर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, ये हमें डिसाइड करना होता है खुद से। और ये डिसाइड करने के लिए भी आपको आपके टीम से कुछ मतलब जैसे बोल सकते हैं कि किसी ने मैसेज किया है, ठीक है मेरी मतलब भूषण को नहीं आ रही है।
हम होता जब बोलते हैं ना तो थोड़ा सा लैग होता है। अभी हो रहा है लैग? अभी नहीं हो रहा बट थोड़ी देर बाद होता है। बीच बीच में लैग हो रहा है थोड़ा। बीच में हो रहा है सर। ओके ओके, मेरा तो नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, अगर बात फिर से होता है तो बता देना, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी देयर। सो ये खाली मुझे आपको बताना था कि डेटा में कितने कॉलम्स हो सकते हैं। उसमें भी कुछ कैटेगरिकल टाइप ऑफ डेटा है, तो ये जो कैटेगरीज है, हर एक कैटेगरी हमें क्या बता रही है। अब 182 CY क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन आपको आपके क्लाइंट से पूछना पड़ता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 182 CY, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 183 LYI। if these categories are similar categories, let's say 182 CY, 183 LYI, ये अगर ये सब कुछ सिमिलर रहेगा तो हम लोग इसको एक ही कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और या फिर इसको इनकोड करते वक्त एक ही नंबर यूज कर सकते हैं, जैसे कि 0 1 कुछ भी हम लोग जो यूज करते हैं, राइट। तो ऐसा मेसी डेटा रहता है पूरा, इसलिए आप भी जो भी मतलब मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि उसको सॉल्व करके भी आप लोग देख सकते हैं अगर आपके पास उतना टाइम रहेगा तो, ठीक है। सो DSC ये तो आपको पता रहेगा, डिस्क्राइब ये जो फंक्शन है क्या एप्लीकेशन आईडी है जो हमारे पास सर लैग हो रही है आवाज। Yes, ब्रेक sir. होता है सर, आवाज ब्रेक होता ब्रेक होता है आवाज। ब्रेक होता है। यस सर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Uh, hello everyone. So what we'll do, so let Aditya sir deal with his network right now. So until then, we will take your questions. Okay. So if you have any questions, तब तक कोई questions है आपके तो हम ले सकते हैं, ठीक है? सर डेटा सेटमध्ये भरपूर कॉलम्स राहतात ना फीचर्स, मग त्यातले कोणते आपण सिलेक्ट करायचे? आता बोलले ना की काही डिलीट करायचे, मग ते कसे ठरवणार की आपण कोणते घ्यायचे आणि हाँ कोणते नाही? ते ऍक्च्युली तुम्हाला EDA पार्ट ॲज वेल एज जो फीचर सिलेक्शन पार्ट आहेत ना, ह्या 2 स्टेजेस मध्ये ठरतात ह्या गोष्टी, ठीक आहे. EDA पार्ट मध्ये तुम्ही मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रिपेअर करता किंवा ड्रॉ करता पूर्ण त्या डेटा सेटची. मग त्या बेसिसवरती तुम्हाला कळतं की बाबा हा इम्पॉर्टंट आहे की नाही. त्यानंतर फीचर सिलेक्शन पार्ट मध्ये आपण स्पेसिफिकली ईच अँड एव्हरी इंडिपेंडेंट कॉलमला डिपेंडंट कॉलमशी कंपेअर करतो आणि त्या बेसिसवरती मग त्याचा इम्पॉर्टन्स तयार करतो. मग त्यानंतर ते इम्पॉर्टन्स वगैरे तयार केल्यानंतर आपल्याला बऱ्यापैकी अंदाज येतो की बाबा कोणते जास्त इम्पॉर्टंट आहेत किंवा कोणते लिस्ट इम्पॉर्टंट आहेत. मग त्या बेसिसवरती मग आपण ह्या गोष्टी ठरवतो. मग ते येईलच आपल्या पूर्ण प्रोजेक्टच्या नाही का पूर्ण जो पाथ आहे त्यामध्ये ह्या गोष्टी येतीलच. मग त्या जशा येतील तसे तसे तुम्हाला जास्त समजतील, ठीक आहे. सर ओके. हॅलो. हा येस. तुम्ही एक्झॅक्ट आन्सर काय करायचा डेटा गॅदरिंग आणि चॅलेंजेस वाईल यू फेस वाईल गॅदरिंग डेटा इंटरव्ह्यूज मध्ये? हाँ, जैसे कि data, if it comes to the data gathering part, as I said earlier also, that there are two methods from which you can tell anything. Okay, like first, as Aditya sir also told us, ki data comes us through the client server. Okay, client SQL server. So once it comes to through client SQL server, what we do, we have a data engineers team with us. So those data engineers basically gather that data from client SQL server to our local server. Okay, once it comes to our local server, it is accessible to us. Okay, so once it is accessible to us, so what we'll do, we'll use different SQL and Python connectors in order to gather the data into our systems, right? सो ये होने के बाद अगर डेटा का एक्सेस हम वही करते हैं यूजिंग SQL कनेक्टर्स और पाइथन कनेक्टर. तो वंस डेटा इज एक्सेस्ड वी कैन गैदर इट इनटू आवर सिस्टम्स. सो ये हो गया एक पार्ट.
एंड सेकंड इज द वेब स्क्रैपिंग पार्ट. ओके, सो वेब स्क्रैपिंग के थ्रू भी डेटा आता है. तो ये मोस्ट ऑफ द रीजंस है, और यही रीजंस आप भी बताएंगे इंटरव्यू में अगर डेटा गैदरिंग का कुछ पार्ट आता है. ठीक है. Hello, Rohit sir, am I audible to you, right? Yes, you're audible, Aditya sir. Okay, I think there is some problem with the microphone. Okay. Yes, please continue. So we were at this table, right? एक बार आपको ये टेबल दिखा देता हूँ और बाद में हम लोग कोडिंग का पार्ट शुरू कर देंगे. So this is the lending bank data. Then we are having this another, that is loan bank data. Okay, lending bank data, then loan bank data है हमारे पास. So let's see what is in this table. Similarly, यहाँ पे भी कुछ कैटेगरीज वगैरह है या फिर n नंबर ऑफ कॉलम्स है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट डेट वगैरह है. So I will be providing you these things. Don't worry about that. आप भी कुछ इससे आप लोग क्या क्या बोल सकते हो या फिर, but I will suggest don't use this project as in your resume. या फिर सबका एक ही हो जाएगा, वो हर एक के लिए बराबर नहीं होगा. ठीक है. So टोटल लेट फीस और क्या टोटल प्रिंसिपल अमाउंट क्या है वगैरह वगैरह. सो ये सब कुछ हो सकता है, और लोन का स्टार्ट डेट क्या है वगैरह वगैरह. सो देयर विल बी एन नंबर ऑफ कॉलम्स, एन नंबर ऑफ फीचर्स. कॉलम्स को क्या क्या अलग अलग वर्ड से कि फीचर्स है, वेरिएबल्स है, और एक है कि फील्ड, जिसके हम लोग बोल सकते हैं कि फील्ड बोल सकते हैं, जिसके वी कैन टॉक लाइक, हम हमारे मतलब क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज कोड फील्ड. Just if you can tell me what are the different categories are there and how these categories are stored, you can ask these things. इसलिए आपको दो तीन मतलब try to use field word, right, and try not to use the column and we were having 200 columns and all. You can say we were having this number of variables, this number of independent variables, right? So this is the loan bank data 1, and there are two different tables. This is new loan data. I will be telling you about this new loan data table later in this stage because this is a very important. और हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग एंड हो जाएंगे पूरा मॉडल बिल्डिंग के बाद, तो इस न्यू लोन डेटा का काम होने वाला है हमारे लिए, और जिस पे हम लोग काम करने वाले, दिस विल बी दिस सिंपल लोन डेटा. ओके, सो एक नॉर्मल सी क्वेरी रन करते हैं कि इसमें क्या है वो देख लेते हैं. So this is the final data that we are going to use. उसमें क्या है कि लोन आईडी है, जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंस, जो कि इंपॉर्टेंट फील्ड्स है फॉर आवर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट. और हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि इफ द लोन इज गोइंग टू गेट अप्रूव्ड और नॉट, that is y or n. Y means that is approved, n means the not approved. Then these are different fields. अब इसके बारे में जो EDA करेंगे उसमें तो आपको हर एक बारे में सब कुछ पता हो जाएगा. So let's start with the SQL connector, right? हॅलो सर. Yeah, hello. सर आपण म्हणजे फीचर सिलेक्शन दोन पार्ट मध्ये करतो. एक की स्टार्ट मध्ये जेव्हा एसक्यूएल मध्ये असतो तेव्हाच, आणि Please सेकंड repeat your question. हॅलो, Please repeat your question. म्हणजे आपण इथे हा. फीचर सिलेक्शन दोन पार्ट मध्ये करतो, राईट? एकदा एसक्यूएल मध्ये असताना आणि Yeah, नंतर मग that- आपण आपले टूल्स यूज yes. करून. फील्ड सिलेक्ट करतो म्हणजे डेटाबेस मध्ये किती फील्ड्स असतात तुम्हाला माहिती आहे, डेटाबेस किती मोठा असतो, राईट आहे की नाही? आणि Yes. डेटाबेस मधून एक फायनल टेबल आपल्याला क्रिएट करायचं आहे. आय थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एबल इन मराठी, राईट? एबल टू अंडरस्टँड मराठी, Yes, sir. Yes, sir. राईट? सो डेटाबेस मध्ये खूप डेटा असतो. मोस्ट ऑफ द टाइम कधी काय होतं की एक डेटा इंजिनियर असेल तर डेटा इंजिनियर डायरेक्ट आपल्याला सप्लाय करून देतो डेटा. तो एक पाईपलाईन बनवतो आणि तो पाईपलाईन करून डायरेक्टली आपल्याला देतो, आणि तो पण थोडं मग क्लिनिंग करायचं काम डेटा इंजिनियर पण करेल. जर त्याला वाटलं की डेटा क्लिनिंगची गरज आहे किंवा त्याला तेवढा टाइम असेल किंवा डेटा इंजिनियर त्यांच्या साईडचा असेल, राईट? कंडिशन्स काही पण असू शकतात.
एकच स्टँडर्ड फॉर्मॅट असेल असं काही नाही. इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरंट असेल. इव्हन कधी कधी असं पण होऊ शकतं की इव्हन आपल्याच साईडमध्ये किंवा आपल्याच आपण आपली जी ऑर्गनायझेशन आहे आपल्याला सगळं काम करावं लागेल की डेटा इंजिनिअरचे काम आपल्यालाच करावं लागेल. पायथन डेव्हलपर वगैरे काय काय एपीआय टेस्टिंग डेव्हलपमेंट डिप्लॉयमेंट वगैरे सगळे काम आपल्याला, किंवा कधी कधी असं असू शकतं की डिप्लॉयमेंटचं काम कोणाला दुसऱ्याला दिलंय वगैरे वगैरे. राईट. So let's start with importing the important libraries, right? So let's import libraries. I hope कि import कौन सी लाइब्रेरी कहाँ से या फिर क्या क्या इंपोर्ट करना है इसमें तो अभी आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. अगर अभी अभी भी आपको उसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है अभी. इसलिए आप ये सब कुछ जल्द से जल्द कर लो. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हम लोग फॉलो करते हैं कि कौन से को कौन सा एलियास यूज करना है, राइट. ये तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है. और एक बात है कि हम लोग स्काईकिट लर्न लाइब्रेरी यूज करते हैं, राइट. तो स्काईकिट लर्न में हमें अल्गोरिदम्स मिलते हैं, जैसे कि कुछ अलग अलग अल्गोरिदम्स है. तो खाली स्काईकिट लर्न में ही नहीं होता है. देयर आर वेरियस लाइब्रेरीज विच आर प्रेजेंट. या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्रीज ने उनका खुद का अल्गोरिदम डेवलप करके रखा है. जैसे कि हमने मतलब लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन का एक खुद का अल्गोरिदम है जिसपे वो उन्होंने खुद ने अल्गोरिदम उनके लिए खुद के लिए बनाए, राइट. इसलिए किसी किसी इंडस्ट्री के खुद का भी अल्गोरिदम रह सकता है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इसको भी उन्होंने खुद से भी डेवलप कर सकते, कुछ भी हो सकता है ऐसा. इसलिए हमेशा इस स्काईकिट लर्न से ही होगा, वैसा कुछ नहीं. स्टैंडर्ड there are different libraries which are coming into the picture right now कि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज आ रहे हैं कि उनमें खुद का रहता है. बिग डेटा का भी मतलब कुछ लाइब्रेरीज आ चुकी है, उनमें भी उनके खुद के लाइब्रेरीज डेवलप कर चुके हैं. Rohit sir, क्योंकि sorry to interrupt you, but some of the students who got disconnected are unable to join back to the link. hello Rohit sir, are you So there? yes. What we'll do, so we'll shift to some other meet. Okay, so I've pasted that link. Okay, so it is basically on from the official ID. So please join in. Sorry for this. Please join that link. So we will be Okay, able if to that is continue. Okay. requirement. Yes. Okay, let's take 5 minutes break and we will be joining at 8:40. Okay. Yes. Please join on the other ID or other meet. I will paste the same in our group also.